Namaskar, hello, where we are, the colorful town where we are going, music, historic cultural town, colorful pottery, handicrafts, ancient architecture, lots of shopping, fabrics, colorful articles, artifacts, funky towns with red roofs, nature, botanical gardens, and funky cafes, musical cafes. Oh my god, ghost tours! I am getting shocking vibes. Beaches, blue waters, coastal drives, scenic coastal drives, surfing waves, cliffs, the roads turning towards the coast. Where we are going, you must be thinking, where is this? See the colorful nature with the ancient architecture, drinks, US Naval Museum, colorful jackets, sand art on the beaches, sand castle. So you must have guessed, now we are in the Southern California, famous for colors, beaches, nature, Mexican vibes, Mexican food, music, laid back beaches, and plush resorts along the warm Pacific coast. So let's tune in and know more about San Diego, where to visit. Let's start. San Diego. San Diego is on the western coast of US and in the southern part of California, which enchants you with the warm sunny weather, picturesque attractions, cultural and historic wonderful things, and many more maritime activities here. So San Diego is also known as birthplace of California. It is famous since 1820s and you can find those 1820s historic vibes here. Located on the border of Mexico and US, this city has vibes of Mexican culture. And you can find here the delicious Mexican food, the cultural and the historic Mexican shopping here, the street side markets, and very colorful handicrafts here. Some of the must visit places are colorful historic town with markets and buildings of 1820 to 1870 still preserved as it is. You can see how during the 1820s people used to live and have their shops, how they used to live and earn their livelihood through their handicrafts and goods and trading, which as it is preserved in this place. Another beautiful thing is to visit the San Diego Zoo, which is famous for exotic wildlife animals, and it is a very big zoo. So kids, families, and all people enjoy in this luscious green zoo here. Now next thing to visit here nearby is Balboa Park and Gardens. This place is superb, splendid, with the beautiful Spanish architecture and botanical garden. So you can find a good lily or lotus pond here, with surrounded with Spanish architecture and large gardens with many kind of botanical trees, herbs, flowers here. So this place is must visit and takes around half a day for it if you want to see the whole of the place. Now you can move to the modern part of the San Diego through the Italian Little Italy. Little Italy is a fisherman town which is famous for restaurants, cafes, and Italian restaurants. And through that you can move to the newer part of San Diego, which has the beautiful skyline near the port, overlooking the Pacific coast. So a seaport village in the other end of the San Diego is famous for all the harbor kind of vibes, seaport, and all those port activities for the children and family, and a perfect weekend trip to San Diego Port Village. And now, or if you are on the seaport village, then you can visit US Midway naval cruise, which was used in World War II. So you can
pay your regards or pay memory to all those soldiers who laid their lives in World War II. And this cruise, as it is maintained on the harbor, and there is some little entrance fee to visit inside this cruise, naval cruise. Nearby, on the walking distance, if you walk towards the port side, then you can visit Maritime Museum. San Diego has very famous port, so the maritime activities are very much famous here, and so the Maritime Museum is worth visiting here. So children, families, and those who are keen to visit maritime, those who love to know about maritime will love this Maritime Museum. San Diego is also famous for warm Pacific Ocean currents, and so the beaches are very beautiful with the white sands, blue waters, surfing waves, and most stunning sunsets in US. So San Diego experiences the most stunning sunsets in US due to its location, strategic location, and the skies of the San Diego becomes pink and purple during this sunset. So if you visit San Diego, then to visit to nearby beaches are must, because there are the most famous, world famous beaches nearby San Diego, like La Jolla, Carlsbad, and Coronado. La Jolla is a perfect day trip from San Diego because its beach shores are famous for surfing and scuba divers. Then comes Carlsbad, a plush beach resort town with exotic beaches and stunning sunsets. Then Torrey Pines State Beach, it is one of the most famous, world famous beach, famous for cliffs with beaches. So you can enjoy the backdrop of cliffs with blue waters, surfing waves. And then the Coronado Island. Coronado Island is the amazing place. It's an island town. It can be reached through ferry or through the Coronado Bridge, and the town is very beautiful with lovely drive, beautiful homes all around, and boutique shopping, and with the heritage hotel Coronado Hotel since 1800. So this hotel on the beach makes a perfect trip to the Coronado Island. So San Diego is place which is famous for shopping, eating exotic Mexican food, fun, frolic maritime activities, beach, nature trips, museums, history, and lot many things. So some of the famous places where you can dine here are Cafe Coyote, which is very famous for Mexican food in Old Town area, and India Palace for Indian food in Crest area. So the best place to stay here are the Seaport Village near the port, and we stayed at Embassy Suites near in San Diego downtown. And if you want the beachside stay, then go for La Jolla or Carlsbad or Coronado. Then it is really worth. Do let me know, did you like San Diego? And now watch the video for more fun. Hello guys, so guess where we are? This is San Diego, which is just on the border of United States and Mexico. तो बताइए हम कहाँ हैं। अमित ने वैसे आपको बता दिया है, लेकिन पर मुझे तो लगता है मैं मैक्सिको में हूँ या फिर यूएस में हूँ। पीछे का नज़ारा आप देखिए और मुझे बताइए कि मैं कहाँ हूँ, तो इससे आपको बिल्कुल अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं कहाँ हूँ। काफ़ी कलरफुल पॉटरी वर्क है, कहाँ पर होता है ये सब, उसका आइडिया लीजिए आप। ये देखिए मेरे पीछे ड्रेसेस हैं, काफ़ी कलरफुल हैंडीक्राफ्ट्स वाली। पीछे का डेकोरेशन देखिए। अमित तो कहीं घूमने निकल गए हैं ये हैंडीक्राफ्ट्स उसमें एरिया में। पूरा कल्चरल और हिस्टोरिक टाउन है। तो ये आप बताइए, घर भी वैसे ही बने हुए हैं। तो कौन से पार्ट में है, मैक्सिकन पार्ट में है या यूएस के पार्ट में है? जी नहीं, हम मैक्सिको में नहीं हैं। हमने आपको बताया था हम यूएस आए हैं, कैलिफोर्निया आए हैं। कैलिफोर्निया का सैन डिएगो जो सदर्न कैलिफोर्निया में है, जो एकदम सदर्न कैलिफोर्निया के टिप पर है, मैक्सिको को बॉर्डर करता है, इसलिए काफ़ी कुछ है। मैक्सिकन वाइब्स हैं, नेटिव अमेरिकन्स की भी वाइब्स हैं। काफ़ी पुराने जो इंडियंस थे उनकी आप देखिए हाउसेस कैसे रहते थे, क्या लाइफस्टाइल था, वो सब आपको दिखाया है। तो इसलिए मैं आपको है ना दिखा रही हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर सब हो रहा है।
तो आप चलते जाइए मेरे साथ, देखते जाइए कितना प्यारा हिस्टोरिक टाउन है, वही कल्चर है, वही फ्लोरा एंड फौना है उसी तरीके का। मतलब आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से सब वेल मेंटेन्ड है जैसे पहले होता था। और ये लाइव हिस्टोरिक टाउन है, ऐसा नहीं कि बस म्यूज़ियम टाइप है। यहाँ लोग काम कर रहे हैं, वैसे ही रेस्टोरेंट्स में बैठे हैं, ये देखिए पॉटरी वर्क, उसी तरीके के हाउसेज़ हैं, उसी तरीके का वर्क हो रहा है, उसी तरीके से मेंटेन किया है। लोग वैसे ही खा रहे हैं, पी रहे हैं, टाउन्स हैं, होटल्स में रह रही हैं, वैसे ही टाउन का पूरा काम हो रहा है। तो एक एज इट इज़ जैसे कि पहले के ज़माने के घर, मतलब मैक्सिकन स्टाइल के घर होते थे, वैसे इन्होंने बनाया है। तो वो आप देख सकते हैं, चारों तरफ ये नज़ारा देखने लायक है। और मतलब यहाँ काफ़ी कलरफुल वाइब्स आ रही हैं, हिस्टोरिक, कल्चरल, आर्टिस्टिक। आर्ट लवर्स को ये प्लेस बहुत अच्छी लगेगी, बहुत कलरफुल है, इतने सारे फ़ोटो स्पॉट्स हैं, इतनी सारी जगह हैं जो आप यहाँ खिंचवा सकते हैं फ़ोटो। तो Hello guys, so we are where now? So we are at Balboa Park. Balboa Park. Balboa Park. So this is the park which was the history, and this was considered to be the center of the town, and which they have converted now into the park. This is amazing buildings, history is there, so many museums. Even one day is not enough to cover it, but we try to cover it enough. Yuti, can you tell further? वो मैं आपको बताती जा रही हूँ, आप देखते जाइए। अभी अमित को कैसे भी करके मैं ढूंढ के लाई थी कि आओ पार्क से थोड़ा हटो और अपने दर्शकों को बताओ कि हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ खो जाएंगे और वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो फिर वीडियोस कैसे बनेंगे, है ना। तो चलो अगले स्पॉट पे मैं मिलती हूँ। मैं तो हमेशा बनाती रहती हूँ, दिखाती रहती हूँ, आपको नई नई चीज़ों से इत्तला कराती रहती हूँ। तो देखिए कितनी प्यारे प्यारे बिल्डिंग्स हैं, धूप भी जोर शोरों पर है। अभी हमने छोटा सा एक बर्गर का बाइट लिया था, वेजिटेरियन बर्गर मिल रहा था, उसमें राजमा बीन्स का अंदर पैटिस थी, तो कोई भी नॉन वेजिटेरियन का दूर दूर तक कोई वो नहीं था। तो हमने एक वेजी बर्गर ग्रैब एंड गो टाइप किया और बस अब हम अपने होटल की तरफ जाएंगे, ये बीच में कुछ और छोटे छोटे स्पॉट्स देखते हुए। अभी मैं पोर्ट विलेज मार्केट में हूँ, देख सकते हैं आप, विलेज मार्केट पोर्ट पर है, द विलेज करके। तो यहाँ देख सकते हैं आप, बहुत सारी प्यारी प्यारी शॉप्स हैं, छोटे छोटे हट्स हैं, यहाँ आप बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह मिलते हैं। तो आप इस तरीके से, जब अभी मैंने पोर्ट पे जो आपको शिप दिखाया था उससे पहले ये पड़ता है या उसके बाद में, पार्किंग के बाद ये आता है। तो यहाँ खाने पीने के जॉइंट्स हैं, सोवेनियर शॉप्स हैं, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मिल रही हैं, बहुत खूबसूरत हट्स हैं। इसमें आप चारों तरफ घूमिए, अपना डे स्पेंड करिए। ये देखिए पीछे आप हट्स देख सकते हैं, ये जस्ट ऑन द सेंट डिएगो पोर्ट है। पोर्ट काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लंबी पार्किंग है। पार्किंग अराउंड $2.5 पर आवर की होती है, वो आपको क्वार्ट्स के थ्रू भरनी होती है। तो आप क्वार्ट्स डालते जाइए, पार्किंग इंक्रीज़ होती जाएगी आपके टाइम के अनुसार। तो फिर ये देखिए तो ये देख सकते हैं यहाँ लोग मस्ती कर रहे हैं, पीछे देखिए लोग मस्ती कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ मैंने देखा है अमेरिकन्स काफ़ी फ़न लविंग होते हैं, मस्ती वाले होते हैं। जैसे आप इनके साथ मस्ती करते हुए चलिए तो ये भी आपके साथ मस्ती करते हैं। इवन जब हम कहीं फ़ोटो खिंचा रहे होते हैं तो पीछे से 2-3 लोग पोज़ बनाने लगते हैं। मैं सोचती हूँ ये क्यों पोज़ बना रहे हैं हमारे फ़ोटो में, और इन लोगों को खूब मज़े आते हैं, खूब मस्ती आती है, बड़े फ़नी पोजेस बनाते हैं हमारे फ़ोटोज़ के अंदर भी। और काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, हमसे काफ़ी सारी बातें करते हैं, और है ना फ़न लविंग, और काफ़ी सारे जोक्स भी क्रैक करते हैं। ऐसा नहीं कि जस्ट बस घूमने आए हैं या हमें घूर कर देख रहे हैं, इस तरीके से नहीं। वो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेबल, एडेप्टेबल होते हैं। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर आकर देखी। हेलो हाय, बताइए हम कहाँ पहुँच गए। हम ला जोइला पहुँच गए सेंट डिएगो से। ये 15 माइल के करीब दूर है। ये पूरा पैसिफिक कोस्ट पे जो हमने बहुत पहले किया था पैसिफिक कोस्ट, उसमें हम वापस आ गए हैं। पैसिफिक कोस्ट हाईवे पर ये बीच है ला जोइला, एक अलग सबब है सेंट डिएगो से थोड़ी दूर। ये लीजिए अमित। So guys, we are bang on the beach, the sunny beach, and you can see the way I am dressing right now, the way Yuki is dressing. You can see that we are having the hot sun with a very beautiful water to just jump in. हॉट सन दिखने में लग रहा है पर काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, पानी भी ठंडा है ऐसा लग रहा है। लोग काफ़ी तामझाम से आए हैं, आप देख सकते हैं पीछे टेंट्स लेकर, अपने सर्फिंग बोर्ड्स लेकर, स्कूबा डाइविंग की तैयारी करके। तो आप देख सकते हैं काफ़ी फेमस बीच है। आज सैटरडे भी है तो वीकेंड है तो भीड़ तो होनी बनती है। बीच के पास ये देखिए पार्किंग है जहाँ मैंने अपनी गाड़ी लगाई है। थोड़ा मुश्किल होता है पार्किंग मिलने में वीकेंड्स पर, सुबह के टाइम जब सनी वेदर हो, लेकिन पर अगर आप खड़े रहते हैं तो मिल जाती है पार्किंग ये फ्री है जो बीच वाली है। अगर आप शायद कहीं दूर खड़ी करेंगे तो वो पेड हो सकती है, लेकिन पर ये फ्री पार्किंग में थोड़ा टाइम आपको लगता है, पेशेंस रखना पड़ेगा
ये देखिए, तो देख सकते हैं ये प्यारी सी हवा, खूबसूरत आसमान, पीछे नीला पानी, इतनी अच्छी लहरें। तो उसके बाद मुझे एक गाना याद आ रहा है जो कि मैं जरूर गाऊंगी, मुझे पता है मैं इतना अच्छा नहीं गाती हूँ फिर भी गाऊंगी। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तुम जो नहीं तो मेरा कोई नहीं, सागर किनारे दिल ये पुकारे। और फिर सागर आ गया ठंडा ठंडा मेरे पीछे, मेरे पैरों के नीचे। अब आप एंजॉय करिए इस जगह को, फिर से पूरा वीडियो देखिए और अपने प्लान बनाइए यहाँ आने के लिए। Hello guys, so we are meeting again. So now where we are on the beach, just on the beach, and we are enjoying the water because it is not so cold. It is bit cold, but you can bath. We are not bathing because we have to run to the other beach. But you can see there are a lot of people who are just bathing and enjoying it. Amazing place, amazing wind. A lot of people enjoying, sea divers jumping, boats going from here and there, kids making noise, and the right place to be in. तो हम लोग कहाँ हैं? हम लोग कार्लसबाद हैं। कार्लसबाद जो बीचेस के लिए फेमस है, कोस्टल टाउन है। हम देखिए उसके टाउन सेंटर पे हैं, विलेज स्क्वायर पे हैं। पीछे अभी हम बीच पे गए थे, वो भी मैंने आपको वीडियो दिखाया। काफ़ी अभी इस समय धूप हो रही है। यहाँ हमने लंच किया था, यहाँ हमें इंडियन लंच अच्छा मिल गया था हिमालयाज़ में, तो विलेज स्क्वायर में ही है। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ लोगों के साथ चल रही हूँ। यहाँ पर साइड में आपको काफ़ी सारी शॉप्स मिलेंगी फंकी फंकी पेंटिंग्स की। ये देखिए पेंटिंग्स की शॉप है यहाँ की। कहते हैं सनसेट्स बहुत फेमस हैं, बहुत सुंदर है, पर अभी हमारे पास टाइम नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें देखनी है, तो मैं सनसेट्स आपको नहीं दिखा सकती। ये देख सकते हैं आप पेंटिंग्स हैं, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत। ही देखिए कितनी प्यारी प्यारी पेंटिंग्स हैं। तो इस तरीके का यहाँ काफ़ी आर्टिस्टिक और मतलब कोस्टल वाइब्स आएंगी, वैसा आपको मिलेगा। पैसिफिक कोस्ट हाईवे नंबर 1 जो सीनिक के लिए फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उस पे ये लोकेटेड है कार्लसबाद। तो यहाँ पर आप देखेंगे छोटे छोटे फंकी शॉप्स हैं, बुटीक्स हैं, बुटीक शॉपिंग है, ज्वेलरी शॉपिंग है, मतलब काफ़ी कुछ आर्टिस्टिक तरीके से डेवलप्ड है। काफ़ी सारे बीच रिसोर्ट्स हैं, बीच इन्स हैं। तो अगर आप सैन डिएगो में नहीं रुके हैं तो यहाँ भी रुक सकते हैं। ये लॉस एंजलिस जाते टाइम बीच में पड़ता है। जब आप सैन डिएगो से लॉस एंजलिस जाएँ या लॉस एंजलिस से आप सैन डिएगो आएँ तो ये बीच में पड़ता है। तो हम ये लोग एज अ डे ट्रिप, हाफ डे ट्रिप की तरीके से आए हैं। पहले हमने ला जूला किया, अब हमने ये किया। आज हमारा बीचेस का दिन है। So guys, so today we reach the city of Coronado, which is the part of San Diego only, which is on the coastal side of San Diego, where the coast of Mexico and San Diego meets. This is such a beautiful city that we even not thought of that this will be so beautiful. When we reach here, it is our street which is having a shops, and you don't want to miss the things which they are selling out there. And it's such a vibrant street that you really want not to miss it. तो फिर हम कहाँ पहुँच गए? होटल डेल कॉर्नेडो। तो ये होटल की ये खास बात है कि ये 1888 में एस्टेब्लिश हुआ था। इतना पुराना होटल, तो ये एक तरीके से हिस्टोरिक होटल है। जैसे अपने मुंबई में ताज होटल फेमस है, उसी तरीके से यहाँ का ये वाला होटल फेमस है कि होटल डेल कॉर्नेडो। इतना पुराना होटल जो कि हिस्टोरिक होटल है। यहाँ कई जगह लिखा भी था कि जब शुरुआत में स्टार्ट हुआ था तो कैसा ये लोग मेनू देते थे, कैसे रूम्स होते थे, वो भी एक तरीके का म्यूजियम है इधर। तो कॉर्नेडो जो कि एक बहुत ही प्यारी सी जगह है। यहाँ पर है ना फ्री शटल्स भी चलते हैं। आप ये देखिए मेरे पीछे खड़ी हैं कलरफुल सी बसेस, वो आप पूरे सिटी का टूर ले सकते हैं। मैं तो कार से आई थी तो मैंने ये यूज़ नहीं किया, मैं अपनी कार से ही घूम रही हूँ। जैसे तैसे हमें अभी पार्किंग मिली है क्योंकि काफ़ी बिजी वाइब्रेंट जगह है ये, तो काफ़ी फुल रहता है। इसे कहते हैं एवरी डे इज़ अ बीच डे। यहाँ वीकेंड्स वीकडेज़ का कोई मतलब नहीं है, सब लोग यहाँ बीचेस पर आने के लिए आतुर रहते हैं। और हर दिन ही जब सनी डे होता है तो यहाँ के बीचेस बड़े पॉपुलर होते हैं। जैसे कि अभी अमित ने बताया, अमित बड़े ही हैप्पी हो गए हैं। ये देखिए फूलों के बीच में से ले जाती हूँ मैं आपको। हाँ, तो हम कहाँ आ गए हैं? कॉर्नेडो बीच पे, जो कि कॉर्नेडो होटल ये देखिए पीछे उसके साइड में है। होटल में अंदर एंट्री थोड़े पार्ट तक अलाउड है, जैसे कि मेन लॉबी तक आप इनके बीच पे आ सकते हैं। ये देख सकते हैं पीछे आप, होटल है जो 1888 में बना था, इसलिए पुराना वो हिस्टोरिक स्ट्रक्चर भी है। अब थोड़ी नई बिल्डिंग्स भी बन गई हैं क्योंकि ऑक्यूपेंसी हाई हो गई होगी। ये देखिए पीछे बीचेस हैं, बीच हट्स हैं, बीच चेयर्स हैं।
लोग मस्ती कर रहे हैं, फुल मस्ती मूड में हैं। तो ये देख सकते हैं काफ़ी प्यारी धूप निकली हुई है, लोग सैंड कासल भी बना रहे हैं। मेरे पीछे आप देखिए कितने प्यारे प्यारे कासल्स बन रहे हैं। अब मैं और बीच की तरफ जाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। सागर किनारे दिल ये पुकारे। अब आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। बाय बाय।